brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। भारतीय नौसेना अगले 3 सालों में अपनी ताकत को और मजबूत करने जा रही। इसकी योजना के तहत अगले 3 सालों में कुल 47 नए युद्धपोत और पनडुब्बियां बेड़े में शामिल की जाएंगी। भारतीय नौसेना के वाइस चीफ वाइस एडमिरल संजय वत्स्यान ने खुद इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि इस साल ही नौसेना ने 10 नए जहाज और 1 पनडुब्बी को शामिल किया है, जबकि अगले कुछ समय में 4 और जहाजों के बेड़े में आने की उम्मीद है। अगले साल 9 नए जहाज और पनडुब्बियों को शामिल करने की योजना है और उसके बाद 13 और जहाजों को आने वाले समय में बेड़े में शामिल किया जाएगा। As far as the numbers are concerned, this year we have inducted 10 ships and 1 submarine, and I am expecting another 4 ships to be delivered before end of December. And I think next year we've got 19 vessels which are likely to be inducted, and most of them should be commissioned by December. And next to next year is about 13 ships that we are expecting to be delivered to the Indian Navy. So I will not predict more than that, but I think 2 years is good enough time frame. So that's the level that we are looking at. इसके अलावा भारतीय नौसेना फरवरी 2026 में अपने तीसरे अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू यानी कि इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू का आयोजन विशाखापट्टनम में करेगी। इस आयोजन में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू फ्लीट की समीक्षा करेंगी। बड़ी बात यह है कि पहली बार इस कार्यक्रम में देश का स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत भी हिस्सा लेगा। साथ ही कलवरी क्लास पनडुब्बियां भी दिखेंगी। Okay, we have extended invites to a large number of nations, and so far we have got responses from over 55 countries who have expressed their willingness to attend all the 3 events. A very large number of navies are also participating through high-level delegations in addition to sending their ships. But as you are aware, we've still got 4 months to go. So these numbers will change because some confirmations are still coming. And as the geopolitics evolve, we cannot predict, what's going to happen after 7 days or 15 days. So there is going to be a change in the numbers. So I'll not be able to tell you exactly how many, navies or the countries have confirmed. But definitely we are expecting more than 55. वहीं वाइस एडमिरल संजय वत्स्यान ने यह भी बताया कि इस आयोजन में अमेरिका और रूस के जहाज भी हिस्सा लेंगे और कुछ विमान भी भेजे जा सकते हैं। इस कार्यक्रम के लिए अब तक 55 से अधिक देशों ने भागीदारी की पुष्टि की है और कई देश उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडलों के जरिए भी शामिल होंगे। ये कार्यक्रम मिलान मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज और इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम के साथ आयोजित होगा। वाइस एडमिरल संजय वत्स्यान ने भारतीय नौसेना की सुरक्षा दृष्टि पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में लगातार विदेशी शक्तियों की मौजूदगी है और ऐसे में भारतीय नौसेना भी यहाँ पर पूरी तरह से सक्रिय है और वो लगातार इस क्षेत्र में सभी गतिविधियों को मॉनिटर कर रही। किसी भी चुनौती या आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए भारतीय नौसेना पूरी तरह तैयार है। As far as challenges are concerned, I think they're all there in the open domain. I don't have to really amplify on that. There is a continuous presence of extra regional powers in the Indian Ocean region due to the ongoing situation. There's always been that, and it's only increasing. At any given point of time, we have more than minimum 40, but going even beyond 50 odd ships that are operating in the Indian Ocean region. And just to assure all of you, we are monitoring each and every one of them. We are aware of what they're doing, what they're likely to do, when do they come in, when they go out, etc. The challenges remain. You've seen what has happened in Madagascar. So, as things keep evolving, we are keeping a track of everything. But the bottom line remains that the Indian Ocean is the main source of transit of goods and oil as far as the world is concerned. That does not change. भारतीय नौसेना लगातार अपने बेड़े का विस्तार कर रही है और वैश्विक स्तर पर सक्रिय भूमिका निभा रही है, जिससे भारत की समुद्री ताकत और रणनीतिक क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि हो रही है। संक्षेप में अगले 3 सालों में
47 नए जहाज और पनडुब्बियों के शामिल होने से भारतीय नौसेना की शक्ति बढ़ेगी। फरवरी 2026 में विशाखापट्टनम में तीसरा अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू आयोजित होगा और भारत हिंद महासागर में स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर समय तैयार खड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।